Hello, my dear friends. This is your friend Jatan Agarwal, and welcome back to the Stipend to Salary series. As your campus dates are out, that key cutoff dates by which you should file your campus form, then key cutoff dates for the companies for giving the online consent, and first round of shortlisting, second round of shortlisting, and interview days. All these dates are out. As a CA fresher, you should know these dates and all about the ICA campus. I'm going to tell you all the tips and all the updates regarding your campus. So please be with me to the end of the video and please do subscribe to my channel and do continue on my Telegram and WhatsApp channel also, link of which is given in the description below, right? So let's start with your campus updates. So friends, this is the website through which you have to file your campus form. cmibplacements.ici.org. So this is the website which you have to file your campus, and the important details regarding your campus is as follows. Firstly, your last date for campus filing is 10th of January. So don't be in hurry that we have to file the at the earliest, because there are certain keywords which you should take care in your mind. We should fill in the campus so that you can get maximum shortlisting. So I'll be coming with another video in which I will be guiding on detail every I will be guiding on every single point of the campus form. So please do not be in a hurry. Please keep some points in mind which I'm going to tell in this video, right? So firstly, your last date is 10th of January. Secondly, who are eligible for opting this campus, as if you have opted and if you have like passed in this November 24 attempt only, then you are eligible. And another person but in the first scenario only, your articleship should complete by 30th of April, right? 30th of April 25. And for it is ending it is ending after 30th of April, then you should ask for a consent from ICI by writing a mail to cajobs@ici.in, right? And second, if you are like a May 24 candidate and whose articleship got over between 1st of November to 30th of April, and who have not opted in the previous campus, so you can also sit in this campus. Third one, if you have passed in May 24 and but you have not registered for the August and September campus. So the key difference between second and third is that CA final results were declared in verification of marks after 31st of July. Second was that case, and third is not that case, right? So you do not have to mind if like you have not sat in the previous campus, you can sit in this campus. That's all the case. And if you are like a November 24 candidate, then that's the campus for you, right? So there is a concept of big center and small center in this campus. So let's see. These centers are classified as big centers. Firstly, your Mumbai. Second, your Delhi campus, Bangalore, Chennai, Kolkata, Jaipur and Pune, Ahmedabad and Hyderabad. So these centers are classified as big centers. A candidate is given an option to choose a big center and a small center. So your interview will be conducted firstly in the big centers, and then afterwards it would be there in the small centers. So the dates are as follows. Basically, it is divided into slots. Firstly, like day premiere for the companies, then first, second, third, like this divided. So this time, Delhi campus is starting after the Mumbai and Jaipur campus. If you see the dates, like it is, Delhi campus is starting on 5th, while the Mumbai and Jaipur and Pune campus starting on the 4th. So this will be the date schedule for the campus, and how would it matter? We'll understand it in this video itself, that how these dates matters, because your basically CTC for the company matters as differs date to date, right? And these are the small centers: Durgapur, Nagpur, and all these Noida, Thane, Bhubaneswar, Chandigarh. So those dates are like you see starting from 11th of March onwards. So firstly, like first like big center campus, and then only the small center campus starts, right? So these are the key cutoff dates which you as a candidate keep in your mind to while filing the campus and while filing the campus form and while appearing in the campus, right? So the organization should register itself for the bigger center by 13th of January, and they have to give the candidates have to give the consent by 15th to 17th.
So let's see that by 10th you will have to file your campus form, right? So then organizations have to submit their their wish list to appear in the campus by 13th of January. So by 15th on 13 onwards they will be provided data of the candidates who have filed their campus till 10th. देन 15 to 17 उनके पास टाइम है कि वो प्रॉपरली आपको कंसेंट दे देंगे फर्स्ट राउंड के लिए। अब फर्स्ट राउंड क्या होता है कि बहुत सारी कंपनीज फर्स्ट राउंड ऑफ शॉर्टलिस्ट, 2 राउंड ऑफ शॉर्टलिस्टिंग ऐसे ही करवाता है। फर्स्ट राउंड में होता है आपके पास जो जो कंपनीज चूज करती है आपको कि वो फर्स्ट राउंड में आपको चूज कर सकती है। दूसरे राउंड में ये होता है कि फर्स्ट राउंड में आपको कंपनीज ने शॉर्टलिस्ट किया पर बहुत सारे कैंडिडेट्स ने कंपनीज को कंसेंट नहीं दी, तो उनके पास चॉइस है कि वो सेकंड राउंड में भी कुछ और कैंडिडेट्स को जो बच जाते हैं अदर देन दैट हु हैव रिजेक्टेड देयर ऑफर्स और नॉट अप्लाइड, तो उसके अलावा बच जाते हैं उनको भी और वो शॉर्टलिस्ट कर सकती है। तो वो सेकंड राउंड की बात आती है। तो अभी अगर 17 तक कंपनीज फर्स्ट आपकी वो देती है आपकी शॉर्टलिस्टिंग देती है, तो 18 से 28 तक आपके पास टाइम रहेगा कि आप कंसेंट दे सकते हो किसी भी चार कंपनीज का ऑप्शन रहता है। अब चार कंपनीज का ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड राउंड ऑफ शॉर्टलिस्टिंग मिला के होता है। तो ध्यान रखने की बात है कि भाई फर्स्ट राउंड में किस किस को बढ़िया कंपनीज को शॉर्टलिस्टिंग देनी है, ठीक है। वो अपन बाद में कवर करेंगे कैंपस फॉर्म फाइलिंग के उसके बाद भी, ठीक है। और उसके बाद बोलते हैं कि सेकेंड राउंड की डेट अपनी स्टार्ट होती है 21st to 23rd। जो कंपनीज के पास टाइम है कि इसमें सेकेंड राउंड ऑफ शॉर्टलिस्टिंग आप दे दो और फिर उसके बाद वापस आपके पास कंसेंट लिया जाता है ये 24 से 26 तक, राइट। तो इसके बाद अभी कंपनीज को जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कंपनीज आजकल साइक्रोमेट्रिक टेस्ट भी लेती है, जीडीज भी कराती है। तो साइक्रोमेट्रिक टेस्ट की भी कंपनीज को ये टाइमलाइन दी गई है और उसके बाद आपको पता है जैसे कि अपन ने ऊपर देखा कि 4th और 5th से आपके इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल द टाइमलाइन विच यू हैव टू फॉलो फॉर योर कैंपस। तो ये है बिग सेंटर, स्मॉल सेंटर अपन बाद में भी देख सकते हैं। I will like have a separate video on it because this time only big campus matters. Only the center choosing for the small campus is there in this campus form. But इसमें एक बात और है कि अगर आप अभी कोई स्मॉल सेंटर चूज करते हो तो बाद में आप उसको चेंज भी कर सकते हो, तो उसके लिए आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। और कैंपस में सेंटर कौन सा लेना है वो भी मैं आपको, तो कैंपस में आपको तो कैंपस में आपको सेंटर कौन सा लेना है वो भी मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा सेंटर आपको चूज करना है डिपेंडिंग ऑन योर मार्क्स एंड डिपेंडिंग ऑन योर रैंक्स एंड ऑल दीस थिंग्स डिपेंडिंग ऑन द एक्सपेक्टेड कंपनीज व्हिच वुड बी देयर इन द कैंपस और व्हिच वुड बी देयर इन द सेंटर्स। तो उसके बेस पे अपन ये लास्ट में डिस्कस करेंगे। इसलिए बोल जाता है कि आप पर्टिकुलरली कैंपस में को सेव करके रख लीजिए कैंपस फॉर्म को, बट सबमिट मत कीजिए लास्ट डेट तक। लास्ट और लास्ट डेट से एक दिन पहले आप सबमिट कीजिए क्योंकि तब तक मोस्टली कंपनीज की लिस्ट आउट हो जाती है कौन कौन सी एक्सपेक्टेड कंपनीज कैंपस में आने वाली है। तो उसके बेस पे आप अपना फाइनल फॉर्म सबमिट कीजिए, ठीक है, क्योंकि एक बार सबमिट कर दिया तो ये चेंज नहीं हो सकता है। तो इसलिए अभी क्या होता है कुछ कुछ पॉइंट्स है जो आपको जनरल गाइडलाइन जो ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो आपको मेंबरशिप ऑप्टेन कर लेनी है अगर आप एलिजिबल हो तो। एलिजिबल कब होते हो, आप तो पास तो कर लिए, दूसरी चीज आपकी आर्टिकलशिप पूरी हो जानी चाहिए, तब आप है ना फॉर्म 2 फाइल करके अपनी मेंबरशिप ऑब्टेन कर सकते हो, ठीक है। नहीं की तो फिर आप है ना मेंबरशिप नंबर के लिए मेंबरशिप नंबर फॉर्म 2 का जो एक्नॉलेजमेंट नंबर आता है वो भी दे दो। अब बोले सर हमारी तो आर्टिकलशिप बाद में खत्म हो रही है, नो इश्यूज। अगर नहीं हो रही है तो उसमें आप तो आप लिख दो कि विल ऑब्टेन दी मेंबरशिप अपॉन कंप्लीशन ऑफ द आर्टिकलशिप। ये आपको लिखना पड़ेगा उस फॉर्म फाइल करते टाइम पे, मतलब आपको उस पर टिक करना पड़ेगा, कोई वो आपको बता देंगे कि कैसे उसको टिक करना है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको एमसीएस का और आईटीटी का आपको जो आपने किया सर्टिफिकेशन कोर्स उसका आपको नंबर कोड करना है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ये वेबसाइट बताई गई है, ठीक है। फिर उसके बाद सीए का रोल नंबर यहाँ पे लिखना है। अब ये क्या बोलता है कि अगर इसमें कुछ इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए है नहीं कि उसके बाद यूनिक सेंटर कोर्स आ जाएंगे। दिल्ली का डीईएल से स्टार्ट होता है, मुंबई का एमयूएम से स्टार्ट होता है, कोलकाता का केओएल से स्टार्ट होता है और चेन्नई का सीएचई से स्टार्ट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि आपको कुछ कैंपस की गाइडलाइंस है क्योंकि अब की बार आपको पता है कि कैंपस आपका फिजिकल होने वाला है, तो उसके लिए कुछ कुछ गाइडलाइंस है जो आपको यहाँ से देख लेनी है, ठीक है। फिर उसके बाद यू आर फ्री टू गिव द कंसेंट। अब आपको 4 कंसेंट आप मैक्सिमम दे सकते हो, जैसे कि यहाँ पे बताया गया फ्री टू गिव द मैक्सिमम 4 कंसेंट, ठीक है। और बिगर सेंटर में आपको 4 कंसेंट। अब बोलते हो सर मैंने तो बिगर सेंटर में 4 दे दी पर मैं कंपनी की किस्मत खराब थी कि वो मेरे को नहीं लेके गई, ठीक है। तो बोले मेरे पास तो स्मॉल सेंटर बचा, तो आपको बता दूं फ्रेश स्मॉल सेंटर्स के लिए 4 कंसेंट आपको मिलती है, ठीक है। फिर उसके बाद हम आते हैं
कि आपको ये सब डिक्लेरेशन फॉर्म ये सब आपकी तरह है नहीं। इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द सिलेक्शन मेथड विल बी रिफ्लेक्ट इन द कैंडिडेट्स लॉग इन इमीडिएटली, ठीक है। अब उसके बाद आपको इसको गो थ्रू कर लेना है, कुछ कुछ गाइडलाइंस हो सकता है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो तो उसको गो थ्रू कर लेना है। ये मुझे नहीं लगता इतनी इंपॉर्टेंट है कि भाई, इसलिए मैं इसको हर एक गाइडलाइन को यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और आर्टिकलशिप आपका 31 जुलाई के बाद पूरा होता है। ऊपर आप बोलोगे कि मेरे को तो सर 30 अप्रैल डेट दी थी, तो मैंने बोला ना आपको, आप मेल करके उससे कंसेंट लेके कैंपस में अपीयर हो सकते हो। और अगर बाद में भी हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही खुद बोलता है कि 31 जुलाई 25 के अगर बात हो रही है तो आप अभी कैंपस में मत बैठो, आप नेक्स्ट कैंपस के लिए वेट करो। फिर उसके बाद कैंपस जो इंटरव्यूज होता है उसका टाइमिंग रहता है 9:30 से लेके 6 PM तक। और फिजिकल है तो आपको जाना ही पड़ेगा। डिफरेंट डिफरेंट डेट्स पे अगर आपकी कंपनीज की शॉर्टलिस्टिंग आ जाती है, जैसे एक कंपनी की आपकी 4 को, एक की 6 को, तो अलग अलग डेट पे। और 4 में मान लो आपका कंपनी की किस्मत खराब कि आपको नहीं ले पाई, तो फिर आपको 6 को वहां पे वापस जाना पड़ेगा। तो इसलिए कैंपस जो सेंटर का सिलेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे बोल देता है कि अगर आपने किसी भी पर्टिकुलरली मान लो कंपनीज कंपनीज को कंसेंट तो दे दी पर गए नहीं, तो कमिटमेंट फीस देनी पड़ेगी 5,000 रुपया। तो ये कोई देता है नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद भी कंपनीज मांगती भी है 5,000 के लिए, आप पे केस फाइल करेगी, ये सब होगा, मुश्किल होता है थोड़ा। तो ये सब जनरल गाइडलाइंस थी जो आपको ध्यान में रखना है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, अगर आप 21 साल के भी नहीं हुए हो तो आपको एक कंसेंट लेनी पड़ेगी कैंपस फॉर्म सबमिट करने से पहले। ये कंसेंट आप कहाँ से इसमें मेल कर देना, CA job@ICI.in, दैट आई स्टिल नॉट कम्प्लीटेड 21 ईयर्स ऑफ एज, सो प्लीज अलाउ मी टू सिट इन द कैंपस। ऐसा करके आप डिटेल दे देना, अपना CRO सब कुछ बता देना। मेंबरशिप नंबर नहीं लिए लेकिन फिर भी डिटेल रिजल्ट वगैरह कुछ लगा देना, ताकि आप इसमें अपेयर हो सकते हो। तो ये जनरल पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा कोई कंपनी स्पेसिफिक पॉइंट्स है जो बेसिकली कंपनी के लिए ICI ने गाइडलाइन निकाली है, बट हम कैंडिडेट्स हैं तो हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पॉइंट्स, क्योंकि इनके बेस पे ही आपको पता चलेगा कि कंपनी किस टाइप से आपको शॉर्टलिस्ट कर सकती है। उनके के कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, उसके बेस पे शॉर्टलिस्ट करती है। तो वो कुछ क्राइटेरियाज आपको यहाँ पे पता चल जाएंगे। तो अभी बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे ICI ने ब्रोशर निकाला है, उसमें सबसे पहले तो अपनी तारीफ कर दी बहुत बड़ी, सर की लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडीज इन द वर्ल्ड है। 4 लाख प्लस मेंबर्स है, 20,000 तो पिछली बार बन गए थे, 11,500 अब बन गए। और स्टूडेंट्स जो, मतलब हमारे जैसे बच्चे जो पहले लटक रहे थे, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकल पाए, तो वो है क्रॉस, लगभग है 9,85,000। तो वो सब बता दिया ICI ने, इतने 5 रीजनल ऑफिस अपनी तारीफ कर दी। फिर उसके बाद अपन आगे आते हैं की कैंपस के लिए अभी क्या है इंपॉर्टेंट डेट्स। इंटरव्यू स्केड्यूल बता दिए उनको कि आपको अगर इन इन कैंप सेंटर्स में आपको आपको लेना है तो इंटरव्यू की डेट्स ये रहेगी। अब ये डेट क्यों मैटर करती है वो आपको बता देता हूँ। आप देखिए कि जो, जैसे दिल्ली कैंपस की बात करते हैं तो आपकी डेट थी जैसे फर्स्ट वाली 5th, ठीक है। 5th आपकी डेट थी। अभी 5th क्यों मैटर करती है, क्योंकि मुंबई दिल्ली कैंपस में कोई कंपनी पहले दिन आती है तो उसको ICI को 6 लाख रुपए देने पड़ेंगे। दूसरे दिन आती है, दूसरे दिन मतलब डे 1 हो गया यहाँ पे। डे प्रीमियम मतलब फर्स्ट डे, ठीक है। तो डे 1 पे आती है मतलब दूसरे दिन आती है, तो उसको 4 लाख रुपए देने पड़ेंगे। वैसे ही ये उसकी कंपनीज की फीस डिफर करती है, क्योंकि कंपनीज आती है CA साहब को लेके जाती है तो कुछ फीस पे करनी पड़ेगी नहीं ICI को। ICI कंडक्ट कराती है पूरा कैंपस, जगह बुक करती है आपके लिए, खाना करवाती है सब। तो इसके लिए ये कुछ उनने कंपनीज को फीस पे करनी पड़ती है, ठीक है। अभी ये कंपनीज की फीस है तो ये अपने लिए इतनी मैटर करती नहीं है, बट एक चीज का ध्यान रखना कि ये अपने से बाद में मैटर करेगी। बाद में ऐसे मैटर करती है पर्टिकुलरली कि इसके बेस पे ये उन्हें बैंक अकाउंट की डिटेल दे दी, इसके बेस पे उन्हें प्रायोरिटी सेट कर दी कि भैया जो डे प्रीमियर पे आता है ना, डे प्रीमियर पे कंपनी जो आती है वो अगर डोमेस्टिक कंपनी है, डोमेस्टिक पोस्टिंग देती है आपको, सॉरी डोमेस्टिक कंपनी नहीं, डोमेस्टिक पोस्टिंग देती है, तो आपको CTC मिनिमम उसको 20 लाख रुपए तो रखना ही पड़ेगा। जैसे ITC हो गई आपकी, और भी 2-4 कंपनीज है जो फर्स्ट डे आती है, एयरटेल हो गई। तो ये क्या 20 लाख CTC इनकी मिनिमम क्राइटेरिया है जो ICI बोलती है। लेकिन ये अपना क्राइटेरिया मतलब मिनिमम CTC 17 लाख भी रख सकती है, लेकिन क्योंकि अगर वो एटलीस्ट 15 कैंडिडेट्स को, 15 CS आपको हायर कर लेगी, तो डे प्रीमियर पे ICI ये उनको एग्जाम्पशन देती है बेसिकली, ठीक है। वैसे ही डे 1 पे बात करते हैं, तो डे 1 पे क्या होता है कि वैसे डे सॉरी डे प्रीमियर पे एक चीज बता देता हूँ आपको कि अगर कोई इंटरनेशनल कंपनी आ जाती है तो उसके लिए ICI ने $1 लाख पर एनम की CTC मिनिमम रखी है। $1 लाख मतलब हो गया आपके 85 लाख रुपीज, अगर कोई इंटरनेशनल कंपनी आती है। लास्ट टाइम कैंपस में बता दूं शायद कोई कंपनी नहीं आई थी इंटरनेशनल, बट शायद 1.5-2 साल पहले ये कंपनी आई थी। तो आपकी किस्मत पे अगर कोई इंटरनेशनल कंपनी आ जाती है तो बहुत ही बढ़िया है, और हो जाता है तो बल्ले बल्ले।
डे 1 पे बात करूँ तो डे 1 पे आपको मिनिमम सीटीसी बोलती है ऐसे कि 14 लाख हमारे बच्चे को दे दो। कोई अगर फॉरेन पोस्टिंग देते हैं तो उसकी 60,000 USD उसको सीटीसी होना चाहिए। अब बोलोगे सर सीटीसी क्या है? सीटीसी में दो तीन कंपोनेंट होते हैं। फिक्स्ड होता है एक, तो एक वेरिएबल होता है। अब फिक्स्ड होता है जो, वो तो आपको मिलेगा ही। वेरिएबल होता है वो आप कंपनी स्पेसिफिक डिपेंड करता है कि एक बार में ईयर एंड पे मिलेगा या फिर हर मंथ मिलेगा, या किस किस क्राइटेरिया पे डिपेंडेंट है। तो वो सब आप एक सेपरेट सैलरी नेगोशिएशन के टाइम पे डिस्कस कर लेंगे क्या होता है। ठीक है। तो ये सब आपको मतलब कंपोनेंट ध्यान में रखने हैं कंसेंट देते टाइम पे, तो वो सब हम आपको बता देंगे कि कैसे कैसे किस बेस पे आपको कंसेंट देनी है। ठीक है, ये सब भी आपको बता देंगे। अभी ये प्रायोरिटी 2 क्या बोलता है कि चाहे आप हमारे कैंडिडेट को तो 14 लाख की जगह 12 लाख की दे दो, पर एटलीस्ट 15 CS आपको आप हायर कर लो डे 1 पे। तो वैसे आपकी सीटी से डिफर करती जाती है। डे 2 पे जो आपकी कंपनी आएगी, डे 2 मतलब थर्ड डे, तो 11.5 लाख देगी, और 11 लाख भी दे सकती है तो मिनिमम 11 लाख देगी। डे 3 पे जो आएगी वो मिनिमम 10 लाख देगी। डे 4 पे जो आएगी मिनिमम 9 लाख देगी, और डे 5 पे मिनिमम 9 लाख ही देगी। तो सीए साहब, आपको 9 लाख से कम तो कहीं भी नहीं मिलेगा कैंपस में। ठीक है। तो आप, जैसे कि मैं आपको नौकरी पोर्टल की जब आईडी क्रिएट प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए बताया था, तो मिनिमम सिटी से मैंने 9 लाख रुपए उसमें बताया था, ताकि आपको अच्छे से कॉल आ जाए। और मिनिमम ये है कि भाई 9 लाख आपको कहीं भी मिल जाएंगे। ठीक है। तो उससे नीचे तो कोई टेंशन नहीं है। अभी ये स्मॉल सेंटर की बात आती है। स्मॉल सेंटर जो है उसमें मिनिमम आपका सीटीसी 9 लाख रहता है, और 9 लाख से भी कम जा सकता है ये कुछ कुछ स्मॉल सेंटर्स में 7.2 लाख। ठीक है, ये बहुत मतलब सिटीज ऐसी है जहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत कम है, उस अकॉर्डिंग ये डिसाइड किया गया है। अभी बोलते हैं कि जैसे ये डेट्स अपन ने पहले डिसाइड की थी कि 10 तक आपको फॉर्म भरना है, 13 तक कंपनीज लिस्ट हो सकती है आईसीआई पे, 15 से 17 तक उनको टाइम मिलेगा शॉर्ट लिस्टिंग दे दो, 18 से 20 तक आपको टाइम मिलेगा कंसेंट दे दो, 21 से 23 तक उनको वापस टाइम मिलेगा सेकंड राउंड की शॉर्ट लिस्टिंग दे दो, 24 से 26 तक आपको वापस टाइम मिल जाएगा कि ठीक है कंसेंट दे दो, और 29 से 30 तक उनको टाइम मिल जाएगा कि आप साइकोमेट्रिक टेस्ट ले लो, और 4-5 से उनका आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस है बेसिकली। अभी देखो कुछ कुछ गाइडलाइंस ऐसा है कि अभी कंपनी शॉर्टलिस्ट कैसे करती है आप लोग को, उसका प्रोसेस यहाँ पे बता रखा है। कंपनी शॉर्टलिस्ट करती है कि ये सबसे पहले तो उनको ना सिलेक्शन बटन, कंपनीज के पास जैसे सब दे दिया उन्होंने, सब 13 तक फाइल कर दिया, तो उनके पास कंपनीज की लिस्ट आ जाएगी। तो उनको सिलेक्शन बटन पे क्लिक करना है, और रजिस्टर्ड सेंटर चूज करना है, मतलब सेंटर, रजिस्टर्ड सेंटर चूज करना है, दिल्ली मुंबई जो भी सेंटर पे आना चाहती है। और है ना सेंटर रजिस्टर्ड पे क्लिक करके फिर उसके बाद है ना कैंडिडेट के नेम को सिलेक्ट, मतलब वो क्या होगी कि क्लिक नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के बेस पे वो ऑनलाइन डिटेल्स देख पाएगी, उसके बाद वो फिल्टर लगा के और है ना शॉर्टलिस्ट कर सकती है। पर आईसीआई ने कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया रखा है कि अगर वो दो वैकेंसीज के लिए आती है तो मैक्सिमम 20 बच्चों को शॉर्टलिस्ट कर सकती है, ऐसा कुछ क्राइटेरिया है। 1:10 रेशियो आईसीआई का चलता है। उनको क्या क्या बताना पड़ेगा? उनको बताना पड़ेगा, ये बता रहे हैं बेसिकली आपको कि भाई क्या क्या क्राइटेरियाज रहते हैं शॉर्टलिस्टिंग के। उनको बताना पड़ेगा कि भैया मेरी शॉर्टलिस्टिंग में ग्रेजुएशन को मैंने ध्यान में रखा है, नंबर ऑफ ईयर्स टू कंप्लीट द सीए फाइनल फ्रॉम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब सीआरओ जब आपसे आपका एक्टिव हुआ ना तब से सीए फाइनल की डेट हुआ, उस बीच में जो डेविएशन रहता है वो ध्यान में रखती है ऐसे ही। तो आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट चाहे छुपा लो, बट इस बेस पे भी आपका क्या बोलते हैं सिलेक्शन, बेसिकली सिलेक्शन होता है, जो आपकी प्रोफाइल का सिलेक्शन होता है इस बेस पे भी होता है, शॉर्टलिस्टिंग इस बेस पे भी होती है। और रिजर्वेशन भी बता सकती है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी बता सकती है, फाइनल के, इंटर के, फाउंडेशन के, कुछ भी कंपनी स्पेसिफाई कर सकती है। तो ये आपकी सिलेक्शन क्राइटेरिया रहते हैं। कुछ कीवर्ड्स रहते हैं जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एस्पेक्ट जो बताती है कीवर्ड्स, वो भी होता है, और कुछ पॉइंट भी होता है। तो उस बेस पे शॉर्टलिस्टिंग से कंपनीज के क्राइटेरिया होते हैं, तो इन सबको ध्यान में रखते हुए हमें कैंपस फॉर्म फाइल करना है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इनको कुछ कुछ और भी चीजें डिस्क्लोज करनी पड़ेगी ऐसे, जो बोलता है बच्चे के हित के लिए कि ना जॉब प्रोफाइल आप पूरी बताओ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताओ, उसमें प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ दे रहे हो वो भी बताओ, और सीटीसी का पूरा ब्रेकअप भी देना पड़ेगा। तो ये सब चीजें भी ऐसे आपसे उनसे पूछ लेता है। और अगर आपका जैसे रूटीन वर्किंग आवर्स नहीं है आपके, मतलब आपको है ना 9 AM से 6 PM के अलावा काम करेंगे बीपीओ के पीओ, तो वो भी डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन ऐसे लेता है, ताकि बच्चे बाद में आईसीए कैंपस के बाद में कुछ भी तरीके का उनके साथ लेके फ्रॉड या डिसीव कुछ भी टाइप का नहीं हो, इसलिए ऐसे सभी इन्फॉर्मेशन पहले ही डिस्क्लोज करवा लेता है। तो ये सब है। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो आपको ऑफर लेटर देंगे, उसको आपको टाइम लिमिट देंगे कि इतने टाइम में आपको उसको एक्सेप्ट करना है, तो उस टाइम लिमिट में आपको एक्सेप्ट करना होता है। और आप मैक्सिमम एक ही जो ऑफर है वो एक्सेप्ट कर सकते हो, उसके बाद आपका ये सीएमआईबी का पोर्टल का लॉगिन ही बंद हो जाता है, मतलब आप लॉगिन ही नहीं कर पाओगे। तो ये सब है आपके प्रोसेस। ठीक है। तो ये सब प्रोसेस है। और लास्ट कैंपस के कुछ आपको हाइलाइट्स बता देता हूँ जो आईसीए ने लिखी है। लास्ट टाइम जैसे आपको पता है 20,000 बच्चे सीए बने थे, उसमें से 94782, मतलब कितना हो गया लगभग
25% को जॉब्स ऑफर हुई थी। बाकी लोगों ने जैसे कुछ प्रैक्टिस चले गए, कुछ बिजनेस संभालने चले गए, या फिर कुछ जैसे ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज निकाली। तो ऐसे करके 4782 को जॉब मिली थी। उसमें से 3705 ने, मतलब 1000 बच्चों ने तो एक्सेप्ट भी नहीं करी, क्योंकि कुछ जैसे और भी कंपनीज रहती है जो पिछली बार शायद आपने सुना होगा, कुछ टीसीएस का था कुछ, तो उस तरीके से फिर एक्सेप्ट भी नहीं करते, ऑफ कैंपस बढ़िया मिल जाता है। तो ऐसा करके इतनी जॉब्स एक्सेप्ट करी, और हाईएस्ट पे दिया था वो टीएफसी ने दिया था 26.7 एलपी का। और ये अपने पीएसयू से जैसे दिल्ली कैंपस में आती है, तो कैंपस सिलेक्शन और कैंपस फॉर्म फाइलिंग का, मतलब कैंपस फॉर्म फाइलिंग प्लस जो सेंटर सिलेक्शन, उसका एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, आपको पूरा गाइड करेंगे। सो थैंक यू सो मच, दिस इज योर फ्रेंड सी जतन अग्रवाल।